جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد کا سجدے میں کلائیاں بچھانا اگر وہ بچھائے تو اس نماز کا کیا حکم ہو؟ مکروہ تحریمی ہے۔ میرا تقریباً 22 گھنٹے کا سفر ہے رستے میں، اور 2 دن 48 گھنٹے میں ادھر فضانے میں دن میں رکوں گا، اور اتنا ہی سفر میرا واپسی کا ہے۔ میرے لیے قصر نماز کا کیا حکم ہے؟ تقریباً اگر 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ ہو اور جہاں جانا ہے وہاں جو ہے وہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو اب جو ہے نا یہ بندہ مسافر قصر پڑے گا نماز۔ ابھی فضانے مدینہ میں مجھے جماعت مل رہی ہے تو وہ تو پوری پڑی جائے گی؟ ہاں وہ تو پوری پڑ جائے گی۔ روحانیت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل، درود شریف کی کثرت، نفس کشی۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ وہ بیان فرمائیں۔ اس میں دیکھیں یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ جس طرح ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح تیلی آسمان کی طرف، تو اب جو ہے نا یہ دیکھیں کہ یہ شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کیا، پھر یہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر اس کے بعد یہ الٹے ہاتھ کی چھنگلی سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، پھر اس سے جو وہ لے کر پورا انگوٹھے تک الٹے ہاتھ کے، پھر آخر میں جو ہے وہ سیدھے ہاتھ والے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے۔ مدنی پھول، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، اور یوں بھی ارشاد فرمایا صدقے کا ثواب 10 گنا جبکہ قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہوں تو اس میں نیت کیسے کرنی چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ امام جیسے نماز پڑھا رہا ہے تو اب جیسے 4 رکعت ظہر آج کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف 7 ان مقتدیوں کے، اگر یہ اس طرح کی مقتدیوں کی اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس سے ثواب ملے گا، اور کہ مقتدیوں کی نیت نہیں کرتا تو ان کی نماز تو ہو جائے گی مقتدیوں کی مگر ثواب سے محرومی ہوگی۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں انا اماموں بھی لازمی ہے یہ پڑھنا یا نہیں؟ کیا انا اماموں یہ لازم تو نہیں ہے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نماز میں جائز ہے؟ کئی بار ہم نے سنا ہے کہ شلوار کو اوپر کرو، پنڈلی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹخنے اگر جیسے شلوار اگر اتنی لمبی ہے کہ ٹخنے چھپ گئے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، البتہ ان کو اوپر سے یہ فولڈ نہیں کیا جائے گا، اس طرح نیچے سے بھی جو نا فولڈ نہیں کیا جائے گا، فولڈ کیا تو ناجائز ہو جائے گا۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی نیت کرے، 15 دن سے کم کے سفر کی نیت کر لے تو آگے جا کر وہ 14 دن روکے، پھر وہ اس کے کسی کام کی وجہ سے 1 دن اور رکنا پڑا لیکن اس کی نیت نہیں تھی پہلے رکنے کی، تو اب وہ مسافر ہی کہلائے گا یا مقیم؟ 15 دن سے کم کی نیت تھی جی، اور 14 دن رکنے کے بعد اس نے
फिर का कोई काम पड़ गया तो मैं 2-3 एक दिन दिन- उसी दिन हाँ। रुके तो और अब वो मुसाफिर ही रहा, जाकल मेरे और इतना मेरे चाहे पूरी जिंदगी गुजर जाए, पूरा साल रुक जाए, रहेगा मुसाफिर। पूरी जिंदगी की थोड़ी सी वजाहत कर दें। हाँ, यानी ये कि जैसे एक बंदा क्या 12 दिन के लिए, क्या मेरा काम हो जाएगा 12 दिन? हाँ बस ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। अभी पता चलो वो काम नहीं हुआ, 11वें दिन पता चला या 12वें दिन, अच्छा चलो मस्जिद 10 दिन लगेंगे, ठीक है चलो मस्जिद 10 दिन रुक गया, अभी भी नहीं हुआ, चलो 5 दिन और रुक जाता हूँ, और फिर चले मैं 14 दिन और रुक जाता हूँ, फिर 3 दिन और रुक जाता हूँ, इस तरह कर करके भले साल गुजर जाए। मगर देखिए नियत दिल के इरादे का नाम है, यानी वाकई ये नियत हो तो ये नियत ये यूं नहीं है कि नियत करता हूं मैं कि 13 दिन रुकूंगा, नियत करता हूं कि मैं 15 दिन से कम रुकूंगा, ये नहीं है। यानी ये देखें कि अब आप किसी शहर में गए, अब मिसाल के तौर पर बाहर गए, ठीक है, अब आपने जो ना वापसी की टिकट भी करा ली, रिटर्न टिकट भी, तो आप गए 1 तारीख यकुम जनवरी गए, यकुम रमजान गए, और वापसी की आपने टिकट ही आपने जो ना 17 रमजान की करवाई, और आप नियत करें कि मैं 15 दिन रुकूंगा, तो ये तो हो नहीं सकता कि टिकट आपने करवाई है 17 रमजान की वापसी, तो ये बनता नहीं है ना। टिकट भी 14 रमजान की हो, 14 तारीख की हो। मदनी पुल जादू, आसेब और जिन वगैरह को दूर करने के लिए 11 बार दुरूद ताज पढ़कर मरीज पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फायदा होगा। जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन क्यों कहा गया? ये तो ज़ाहिर है कि हमारे आका ने फरमाया है, अल जुमुअतु ईदुल मुमिन, हमारे आका ने फरमाया लब्बैक। ये देखिए ना कि ये उम्मत मुहम्मदिया पर, इस उम्मत के लिए देखिए कितनी नेमत है कि हर हफ्ते में ईद का दिन है, और जुम्मा की जो है वो हर घड़ी रहमत भरी है, और एक नेकी का सवाब जो ना 70 गुना मिलता है जुम्मा वाले दिन। तो लिहाजा जुम्मे को चाहिए कि इसमें दुरूद शरीफ भी जो है वो कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, जुमेरात और जुम्मा दोनों दिन बहुत मुबारक दिन है जुम्मा। आज डेरा बुट्टी सुई वगैरह के आशिकान रसूल हमारे दरमियान है, और एक हमारी जो इस्लाम भाई डेरा बुट्टी से आए हैं, मियाँ वाली के हैं, जामियातुल मदीना वाले भी हैं, जिम्मेदार और अवाम, तो उसमें यूं के मुख्तलिफ तबके, उसमें एक इस्लाम भाई तो उनकी बड़ी ही नुमाया कारकर्दगी है। 6 साल के मदनी मुज़ाकरे बराह रास्त जितने हुए तकरीबन वो तो देखे ही हैं, 200 ऑडियो मदनी मुज़ाकरे इसके अलावा हैं। 4 साल में हर साल अमीर अहले सुन्नत के तकरीबन रसाइल का मुताला इन्होंने हर साल किया है, और इसके अलावा फैज़ान सुन्नत और जितनी बड़ी किताबें अमीर अहले सुन्नत की हैं, फैज़ान नमाज के अलावा उनका एक बार इनका मुताला हो चुका है, बास का ज्यादा मरतबा भी इनका मुताला हुआ है, और वो भी हैं। इस तरह बाजों ने जो जिम्मेदारान है उनमें 313 मदनी मुज़ाकरे, जामियातुल मदीना के तलबा में जो है वो 313 मदनी मुज़ाकरे और 92 रसाइल हफ्तावार पढ़े सुने, मदनी मुज़ाकरे देखे सुने। और इसी तरह बाज वो तलबाए सुई के जो मुझे बताया इनके निगरान काबीना ने, और कुछ उनसे सवालात भी किए मैंने, तकरीबन 21 माह से, यानी गैप वाले महीने निकाल कर 21 माह से वहां पर रोजाना तकरीबन 50 चौक दर्स हो रहे हैं जामियातुल मदीना के, और उनमें बाज एक हमारे इमाम साहब हैं जो यौमिया 12 चौक दर्स दे रहे हैं, और 18 इस्लामी भाई 2 माह के अंदर इन्होंने मदरसतुल मदीना बालिगान के तैयार किए। इमाम साहब है फैज़ान मदीना के, जामियातुल मदीना के तालिबुल इल्म है, इसी तरह एक और तालिबुल इल्म सुई के। कौन है इमाम साहब? इमाम साहब अपनी ज़ियारत करवाएं। 2 माह से एक ही दर्स, यानी कि मैं रोजाना देता हूँ, और उसी में 18 तलबा हैं, 18 तलबा बालगान वाले बैठते हैं। मस्जिद में भी दर्स है, चौक दर्स भी है। माशाल्लाह। अच्छा, चौक दर्स भी आप ही देते हैं? जी मैं खुद जाके देता हूँ। माशाल्लाह। और मस्जिद में भी आप ही देते हैं? जी। एक और इमाम साहब भी हैं सुई के जो दर्स देते हैं, उनकी थोड़ी तफसील इमाम साहब बयान करें माइक पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चौक दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, 12 चौक दर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोजाना। अच्छा, रोजाना आप भी इमाम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये 12 चौक दर्स रोजाना दे रहे हैं इमाम साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए। तालिबुल इल्म भी हैं, कौन से दर्जे में है? दर्जे सानिया। माशाल्लाह। हिकायत, बहन का हक अदा ना करना। हजरत मुजाहिद बिन याहिया बल्खी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं,
ایک خراسانی شخص 60 سال سے مکے شریف میں رہتا تھا اور بڑا ہی عابد و زاہد شخص تھا. دن قرآن پاک پڑھتا اور ساری رات طواف کرتا. ایک نیک اور صالح آدمی کی اس خراسانی سے دوستی تھی. ایک مرتبہ اس آدمی نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیے اور سفر پر چلا گیا. جب سفر سے واپس آیا تو پتا چلا کہ اس خراسانی دوست کا انتقال ہو چکا ہے. یہ نیک شخص اس خراسانی کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. اس نیک شخص نے مکہ شریف کے علماء سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ مرحوم خراسانی جنتی ہوگا اور جنتیوں کی روحیں زمزم کنویں میں ہوتی ہیں. تم آدھی رات کے بعد زمزم کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ جواب دے دے گا. اس نے ایسا ہی کیا مگر زمزم کے کنویں سے جواب نہ آیا. اس نے پھر مکہ شریف کے علماء سے رابطہ کیا. انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں. اب تم یمن میں برہوت نامی کنویں پہ جا کر اسی طرح بلاؤ. وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے. وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں. چنانچہ یہ یمن پہنچا اور برہوت نامی کنویں میں جھانک کر آواز دی اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نیک شخص کا بیان ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے مرحوم خراسانی دوست کی آواز سنی اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ تم تو عابد و زاہد تھے، نیک آدمی تھے. تو خراسانی نے کہا کہ میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی یعنی رشتہ توڑے رکھا جس کی وجہ سے میری ساری عبادت تباہ ہو گئی اور اب مبتلا عذاب ہوں. اس نیک شخص نے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ تو اس خراسانی نے کہا کہ میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن ہے، جا کر وہاں سے نکال لو. چنانچہ وہ نیک شخص خراسانی کے مکان پر گیا اور وہاں سے اپنی رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا اور اس کی ضروریات پوری کی اور وہ بہن خوش ہو گئی. اب اس نیک شخص نے مکہ شریف حاضر ہو کر زمزم نامی کنویں میں جا کر آواز دی تو مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ برہوت کنویں سے نجات مل گئی ہے اور اب میں زمزم کنویں میں امن و چین سے ہوں. یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں اس میں کروں نہ بھول چوک. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ رشتہ داروں بالخصوص بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اور ان کے حقوق سے لاپرواہی کرنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا باعث ہے کہ جس کی نحوست کے سبب بندے کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بیان کردہ حکایت میں بالخصوص ان لوگوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں جو نمازوں کی تو خوب پابندی کرتے ہیں، حج و عمرے کی سعادتیں بھی پاتے ہیں اور راہ خدا میں بھی دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، مساجد و مدارس کی آباد کاری میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، خوب مدنی کام کرتے ہیں، صبح و شام نیکی کی دعوت دینے میں گزارتے ہیں، غرباء و مساکین کی خیر خواہی میں بھی پیش لیتے ہیں، اپنے دوستوں پر خرچ کرنے، ان کی خبر گیری کرنے اور برے وقت میں ان کے کام آنے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. ایسے لوگ خود بھی عیش و راحت کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی مہنگی ترین کاریں، بنگلے، اسکوٹریں، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس اور دیگر عیش و راحت کا ساز و سامان فراہم کرتے ہیں. ان کی بھاری فیسیں بھی بخوشی بھرتے ہیں، اپنی اولاد کی شادیوں پر بھی پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں. اگر اپنی گلی، محلے، علاقے، برادری، شہر یا ملک میں موجود محتاج و ضرورت مند رشتہ داروں خصوصاً بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات پورا کرنا اور انہیں وراثت میں سے حصہ دینا تک انہیں گوارا نہیں ہوتا. یہ مسئلہ سن لیجئے اور اسے ذہن نشی کر لیجئے. جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے. اور یاد رہے صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں قطع رحمی سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. امیر اہل سنت کا مشورہ فرماتے ہیں کہ گوشت ہڈی والا
खरीदना चाहिए कि क्योंकि हड्डियां जो है ना वो ग़िज़ा के साथ साथ जो है वो दवा का काम भी देती हैं, और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ये बाज मरीजों को जो है वो अपनी हड्डियों की यखनी पीने का मशवरा देते हैं। यानी आप ये इरशाद फरमाए कि हमारे यहाँ नॉर्मल जो होता है वो एक गोश्त होता है जिसको कहते हैं बोनलेस, और उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। बोनलेस खाने की तरफ लोग आते हैं। अच्छा, बोनलेस का मामला ये है कि जैसे बाजार की बिरयानी हो ना, स्पेशली उसमें बोनलेस की बड़ी वैल्यू होती है, उस बोटी की जो बोनलेस हो। और ये तादाद जो हड्डियों के बगैर गोश्त खाने को पसंद करती है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? यानी देखें कि हड्डियों के जो है ना अपने फवायद हैं, और हड्डियों का एक जायका भी है कि हड्डी वाला जो गोश्त बनेगा इसका जायका अलग होगा। और बाज ऐसे सालन हैं कि जिनमें जब तक हड्डी नहीं होगी तो उस सालन का वो जायका नहीं होगा। आपने मिसाल दी बिरयानी की, तो बिरयानी में जो हड्डी वाला जो गोश्त होगा ना, उस बिरयानी का जायका अलग होगा, और जो बोनलेस होगा यानी जिसमें हड्डी नहीं है तो उसका जायका अलग होगा। तो बास तो ऐसी आइटम्स है कि जो बगैर हड्डी के बन ही नहीं सकती। जैसे पाए ले लें, कुन्ना गोश्त ले लें, कोरमा ले लें, चापें। चलो चाप तो जरा कि है ही जो है ना वो एक तरह चाप ही है, वो हड्डी इसमें लाजमी है। वो पाए में भी हड्डी लाजमी है। वो कुन्ना गोश्त जो है ना वो बगैर हड्डियों के नहीं बनता। और कोरमा, कोरमे में भी हड्डी होगी तो एक इसका अपना जायका होगा। जो नई नस्ल है ना, उसका स्टाइल खाने का ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे खा रहे हैं तो ये अम्मा की ये वाली बोटी है, दादी अम्मी की ये वाली बोटी है, ये वाली मेरी है। तो ये जो बोनलेस है ना, ये सरक के बड़े आराम से इस साइड पर आ जाती है, और फिर वो जो मतलब लेग पीस है वो अम्मी की तरफ चला जाएगा। गर्दन वगैरह के होंगे तो ये दादी अम्मी हमारी बुजुर्ग हैं, तो ये वाला उधर चला जाएगा। ये तरकीबें चल रही होती है। नहीं, मगर ये भी होता है कि बचपन में माएँ जो है वो बोनलेस ही बच्चे को देती हैं। जैसे चावल वगैरह निकाला, बिरयानी, सालन वगैरह जो भी, तो हड्डी वाला बड़ों को दिया जाता है और बगैर हड्डी वाला बच्चों को, ताकि वो उनको लगे नहीं। हमारे यहाँ 25 साल बच्चे भी यही चल रहे होते हैं ना, इसी तरह की फिर एक अलग तरकीब में। चीज है। जानशीन मेरे अहले सुन्नत से सवाल है कि वुजू के अंदर अगर कान की कन पट्टी ये सूखी रह जाए तो वुजू हो जाएगा? ये जो लटक रहा होता है ये या ये वाली कन? ये अपनी कनपट्टी दिखाइएगा भाई। कान का उभरा हुआ हिस्सा कह रहे हैं आप? कनपट्टी तो मेरा ख्याल ये थोड़ा नीचे होती है इसके। ये कान का बोल रहे हैं, कान का ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये बोल रहे हैं। ये सुराख के बाद वाला, जो सुराख के ऊपर, यानी सुराख के ऊपर जो होता है ये वाला हिस्सा, ये बोल रहे हैं। इनको ये कनपट्टी कह रहे हैं। कनपट्टी थोड़ी नीचे होती है। यानी ये तो कनपट्टी नहीं है, ये अगर ना भी धुले तब भी वुजू हो जाएगा। आपकी बारगाह में सवाल ये है कि आप जानशीन, खलीफा और गद्दी नशीन, इन तीनों के माना और इनमें फर्क बयान फरमा दें। तीनों एक ही चीज है नाइब। जवाब दीजिए। आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर कितने ऊँट नहर फरमाए? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से 63 ऊँट नहर फरमाए। आपका जवाब दुरुस्त है। अर्ज ये करनी थी कि बाद औकात जेब में तस्वीर हुआ करता है और नमाज की हालत में सजदा के मकाम पर गिर जाता है, तो अब नमाज का क्या हुक्म है? हाँ, ये वो छोटी तस्वीर होती है और ये इसमें कोई हरज नहीं है। बस ये जहाँ पेशानी वगैरह लगे वहां से हटा दी जाए, अमल कलील के जरिए, एक हाथ से हटा दीजिए। कि नमाज के दौरान इयादा कर सकते हैं? मतलब सूरत पढ़ रहे, मतलब रुक गया, सूरत आयत पढ़ रहे, आयत में रुक गया, तो पीछे से पढ़ना चाहिए या नहीं? ये होगा कि जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, यहाँ तक ये रुक गए। अब इनको शुरू करना तो अब अर्रहमान अर्रहीम से शुरू करेंगे या डायरेक्ट अर्रहीम करेंगे? ये मुराद है आपकी? हाँ, इस तरह है। तो जरा के पीछे से शुरू करेंगे ना। आयत के बीच में रुक गए थे तो फिर पीछे से लफ्ज लेकर आगे चले। हाँ, बीच में। हाँ, और जहाँ जो है वो आयत पूरी हो रही है या जहाँ तोइन बना हुआ है या जहाँ वक्फ लाजिम है तो वहाँ पीछे से शुरू नहीं करेंगे। सवाल अर्जी है आपसे कि अगर कोई नमाज वितर में दुआ कुनूत उसको आती भी हो, उसके अलावा ये पढ़ ले कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये उसकी वितर हो जाएंगे, मगर ये कि अफजल दुआ कुनूत है। ये दुआ कुनूत
पढ़ना वाजिब है या तकबीर कुनूत के कहना वाजिब है? तकबीर कुनूत भी वाजिब है और दुआ कुनूत भी वाजिब है, कोई भी दुआ वाजिब है। इसमें सजदा सहू नहीं होगा अगर भूल के रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ ले? नहीं, नमाज हो जाएगी। ये जो दुआ कुनूत है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक़। ये दुआ अफजल है। रब्बि ग़फिरली अगर कह लिया 3 बार या 1 बार तब भी नमाज हो जाएगी, इन्हें वित्र हो जाएंगे। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये भी अगर कह लिया तब भी नमाज हो जाएगी। जानशीन में अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि नमाज में तिलावत कुरान करने या सूरतों में तरतीब रखने का हुक्म है। अगर कोई फ़र्ज़ नमाज में पहली रकात में सूरतुन नास तिलावत कर ले पूरी, तो अब तो फिर वो दूसरी रकात में कौन सी आयत या सूरत पढ़ सकता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। इसी सूरत को दोहराएगा दूसरी में। जानशीन मेरे अहले सुन्नत से सवाल है कि सोशल मीडिया पर आजकल कुफ्र व गुमराही के फतवे लगाए जाते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले कई अफराद ऐसे हैं कि जो इस मामले को सर्चिंग में लग जाते हैं, टो में लग जाते हैं, और उसकी बिना पर जो आपस में दोस्त होते हैं वो इस पर बहस व मुबासा करते हैं। तो इस सूरत हाल में आपसे रहनुमाई ये दरकार है कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो दोस्त आपस में बहस करते हैं इनको किन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, इस पर रहनुमाई फरमा दीजिए। ये इसमें तो ये है कि वैयाकुम सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, बस सबसे बेहतर है लिए। अलबत्ता अब जैसे रखा हुआ है तो तरह जो खानदान वाले, घर वाले या जो भी एक अपना तंजीमी तरकीब है वो इनसे राबिते के लिए रखा जाए, बाकी कोई भी इसमें वीडियो वगैरह है ना देखी जाए। लेकिन वो जो दोस्त आपस में बहस करते हैं, इस हवाले से कुछ रहनुमाई की मदनी फूल मिल जाए। जहाँ तक बहस के ताल्लुक है तो ये बहस के ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया का जरिया तो रही, तो पहले भी लोग करते थे इस तरह की बहस। मुलाकात हुई तो की, मुलाकात टेलीफोन वगैरह इसमें कर दिया, फिर जब ये कहीं दूर रह रहे तो खतो किताबत के जरिए बहस होती है। फिर तो ये इसी के जरिए होती थी खतो किताबत। एक जैद ने बकर के वाले से, बकर ने जैद के वाले से लिखा तो इसने इसका रद्द किया, तो इसने इसका रद्द किया, ऐसे खत तो भरे में। अलबत्ता चाहे खत हो, बातचीत हो, या सोशल मीडिया हो, या टेलीफोन हो, या SMS, ये जो बहस है ना कुफ्र इस्लाम वाली कि किसी के बारे में यानी काफिर करा देना और किसी को मुसलमान करा देना, तो ये गैर आलिम को तो ज़ाहिर है कि हाँ बाज बातें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल हर एक को पता है। कि जैसे किसी ने कहा कि अब भी जनो कोई नया नबी आ सकता है, तो ये ज़ाहिर है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का इनकार हुआ ना, कि हमारे आका को तो मान रहे हैं नबी, मगर क्या इनका आखिरी होना, ये इसका इनकार हुआ। जब इसका इनकार हुआ तो वो काफिर हो गया। आज एक बिल्कुल मुनफरिद मिलादी कसौटी करने का भी ज़हन है। जो तबका है वो अहम तरीन तबका हमारा जो है, वो जो हमारे इस्लामी भाई माइक तकसीम करते ना, इनमें मिलादी कसौटी करने का। और ये हैं भी जामियातुल मदीना के, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना जामियातुल मदीना ही के हैं तकरीबन ये मिलादी कसौटी। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या सैयदी, आपकी मुरादी शय क्या इंसान है? जी नहीं। क्या आपकी मुरादी शय जो है वो कोई मुकद्दस मकाम है? जी नहीं। या सैयदी, आपकी मुरादी शय क्या कोई किताब है? जी नहीं। क्या ये जमाना उस चीज को देखना मुमकिन है? जी नहीं। 4 सवालात हो चुके हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। या सैयदी, जो आपने चीज सोची है क्या वो अरब शरीफ में है? जी नहीं। या सैयदी, आपकी बारगाह में अर्ज ये है कि क्या वो शय या वो चीज क्या जमीनी चीजों में से है जो जमीन पर होती हैं? जी हाँ। सैयदी, क्या उस शय की वजह शोहरत किसी नबी अलैहिस्सलाम से है? जी हाँ।
क्या उस शय का ताल्लुक अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़ाहिरी बदन से है, जैसे कि कपड़े वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं? नहीं, कपड़ा क्या बदन में शामिल है? तो ज़ाहिरी बदन के ऊपर? जी नहीं। आपकी जो मुरादी शय है वो किसी लकड़ी की जिन्स से है? जी नहीं। क्या उस शे का ताल्लुक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के जो अंबिया इकराम है उनसे ताल्लुक है? जी नहीं। वो शे जानदार है? जी हाँ। क्या आज के मदनी मुज़ाकरे में उसका कोई जिक्र हुआ है? जी हाँ। इशारा अगर एक दिन मिल जाए। इशारा चाहिए जनाब को। जी। इस वक्त मदनी चैनल के लाज़िम जो आपको कैफियत नजर आ रही है ना स्क्रीन पे दिखाई, ये तलबा आपस में बात कर रहे हैं, ये आप समझिए आपको एक जामियातुल मदीना का प्रैक्टिकल मंजर नजर आ रहा होता है ना, जब इस्तिराबी कैफियत होती है, कोई चीज पे मुशावरत हो रही होती है ना, इस तरह सर मिले हुए होते हैं। तो ये आपको एक आप समझे इंडोर कैफियत जामियातुल मदीना की इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आउटडोर स्क्रीन पर इनडोर कैफियत आप देख रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। वक्त इनकी मुशावरत का बड़े पूरा हो चुका हो। इशारा अगर थोड़ा सा इशारा तालिबे इशारा है। इनके ज़हनों में क्या आ रहा है अभी? एक इशारा सैयद साहब ने ये बोला है किस वक्त तस्करा हुआ है? मेरी मौजूदगी में 11 बजे के बाद हुआ है, मिलादी कसौटी के बाद हुआ है। ये वाजा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। या सैयदी, आपका मुरादी शय हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश है? आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वैसे वाजा साहब का तो तोहफा है ही, बिल्कुल, और मुअज़्ज़ज़ीन को भी जो है ना वो नवाजना चाहिए। ऐ जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो रब की रहमत। ऐ जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, ऐ जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो